topic from circulation. When animal body happens to exhibit double circulation with a setup of blood vessels, heart, and the blood involving uh, systemic and pulmonary circulation. So throughout the body, if we go in any given area, so today we are going to basically begin the class with the concept of blood vessels and its types throughout the body. If we happen to peep into any histological part of the blood supply to any organ, we are going to experience this arrangement of a circular movement of the fluid body, which comes from one part and thereby distribute the resultant contents of it by exchanging into the nearby tissue space with the tissue fluid, and it just move on thereafter being recollected by the vein. So it's a complete drainage system inside the body, exhibiting river of life. Now typically if we peep into the histological setup of the artery as one of the main great blood vessel.
Now, any great vessel is histologically made up of three successive layers. The outermost layer is tunica externa, followed by the next layer, tunica media, and the innermost layer, so the innermost layer made up of single cell thickening with basement membrane, endothelium lining, and that is tunica interna. Tunica. Now, this is simply a presentation of artery, where successively made up of externa, media, and internal layer. Tunica externa made up of dense fibrous connective tissue, whereas the media layer is made up of two successive layers. खुद tunica media जो है inside the artery is made up of two layers. Those are respectively स्मूथ मसल्स, यानी इतना सा हिस्सा स्मूथ मसल्स का है, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है ना, दो लेयर से बना होता है यहां पर. हेंस इट इज थिकेंड, हल्का सा मोटा होता है. एंड द इनर मोस्ट लेयर इज लाइंड बाय सिंगल सेल लाइनिंग, फ्लैट स्क्वामस सेल्स है ना, स्क्वामस एपिथेलियम, simple squamous epithelium, rather called endothelium, lining the blood vessels internally. That's covering epithelium, simple squamous epithelium is called endothelium. तो ये तो एक रिस्पेक्टिव हिस्टोलॉजी है थ्रू आउट बॉडी. कहीं भी हम चले जाएं, किसी भी एरिया में आर्टरी की हिस्टोलॉजी, थ्री सक्सेसिव लेयर्स. बट पॉइंट टू बी नोटेड, where the difference lies. ऐसे तो वेन में भी यही तीन लेयर्स होते हैं, बट द डिफरेंस इज, वो अभी मैं उस तरफ वेन का बनाऊंगा.
So again, same composition. Outermost layer, tunica externa, dense fibrous connective tissue. The middle layer, tunica media, but this time it is thin. And what is absent? Elastic connective tissue. सिर्फ smooth muscles होते हैं, no elastic connective tissue. सिर्फ स्मूथ मसल्स होते हैं, हेंस इट इज थिन. जबकि आप देख सकते हैं यहां मैंने ये थिकर बनाया है. यहां पर ल्यूमन नैरो होता है, ये जो ल्यूमन है इट इज नैरो, जबकि यहां इट इज ब्रॉड, थोड़ा ब्रॉड होगा ये. Again, this layer is simply made up of simple squamous epithelium, tunica interna, but I have used different color क्योंकि being a vein it carry deoxygenated blood. कैसा blood होगा इसमें, और इसमें ऑक्सीजनेटेड, इसलिए रेड और ब्लू कलर का डिफरेंस बना रखा है. So respectively either it is vein or artery, they are typically made up of 3 successive layers being an organ. These are organs. ये है टिश्यू. जैसे जैसे लेयर कम होता जाएगा, जैसे ही हम आर्ट्रियोल्स में जाएंगे तो ये लेयर हट जाएगा. वेयर द डिफरेंस लाइज, ये पढ़ने के बाद क्या याद रखना है कि जैसे ही हम आर्ट्रियोल्स के इस लेवल तक पहुंचते हैं, विच 2 लेयर्स सेपरेट, ये लेयर हट जाता है, फिर ये लेयर हट जाता है, और एट लास्ट कैपिलरी बेड में सिर्फ यही लेयर रह जाता है, सिंगल सेल थिकनिंग. तभी तो एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन हो पाएगा, है ना. तो आई एम कमिंग टू दैट कैपिलरी पार्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल let us compare the 2 major blood vessels inside the human circulatory system, respectively arteries and veins. More elastic, less elastic. Narrow lumen, broad lumen. Thick tunica media, thin tunica media. Elastic tissue present in media layer, absent take away blood from, what are arteries actually defined as? Take away blood from heart to other organs. Those blood vessels are actually called arteries. They are responsible to take away blood from heart to other organs. Bring about blood from organs to heart. Valves absent. इनमें valves नहीं होते. Valves present.
है ना, valves absent, valves present. Blood flow with high pressure. Blood flow with low pressure. इसी पॉइंट के नीचे ब्लड प्रेशर कैन बी रेगुलेटेड. किस ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है? पूरे बॉडी में, आर्टरीज में. जबकि यहां है ना, कैन नॉट बी रेगुलेटेड. ये बात तो मैंने ब्लड पढ़ाते हुए समझा ही दिया था आपको, है ना. ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था क्योंकि सेरोटोनिन, हिस्टामिन एक्चुअली किन पर काम करते हैं? दे वर्क ऑन दिस लेयर. क्योंकि यहाँ जो इलास्टिक टिश्यूज में फाइबर्स मौजूद हैं वो एक्चुअली स्क्वीज होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ, जो इसमें मौजूद है और इसमें तो है ही नहीं. तो हिस्टोलॉजी पता हो ना, मतलब ये बेसिक है वही तीनों लेयर्स, बट वेयर द डिफरेंस लाइज. रिजल्टेंट, ये नैरो होने के कारण, ये थिन होने के कारण इसको थोड़ा ज्यादा जगह मिलता है, ब्रॉड ल्यूमन बनता है. ये थिक होने के कारण ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, ल्यूमन नैरो. एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट ब्लड प्रेशर. इसलिए तो एक ऑल ओवर प्रेशर के साथ फ्लो करता है. हाँ, हालांकि मैंने आपको ये बात समझाया था कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इतना प्रेशर एग्जिट करेगा, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां आके तो कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि नेट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो जाता है, ठीक है ना. तो वो जो पूरा प्रेशर है वो आके यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है. तो मैंने लेक एंड रिवर थ्योरी बताया था. क्या बताया था? मतलब मैंने ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया था कि आर्टरी से कैपिलरी तक रिवर की तरह ब्लड आता है और कैपिलरी ब्लड में आके वो लेक जैसा स्ट्रीमिंग मूवमेंट के बाद दोबारा रिवर की तरह ब्लड चला जाता है. लेकिन यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर थोड़ा नेट कम होगा. बीच में यहां पर बिल्कुल लो प्रेशर हो जाता है. तो इंडीड यहां तो स्क्वीजिंग, आसपास के मसल्स की स्क्वीजिंग और वेल्वुलर मूवमेंट के वजह से ब्लड बैक फ्लो ना हो, ठीक है ना. तो यही पॉइंट अगला देखिए, धीरे धीरे लिखते लिखते पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे आप. ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर कैन बी रेगुलेटेड, कैन नॉट बी लो प्रेशर, कैन नॉट बी रेगुलेटेड. तो वेल्व्स मौजूद होते हैं, उसमें नहीं होते हैं. तो यहां पर क्या होगा? बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहां नहीं होता. बैक फ्लो ऑफ ब्लड डज नॉट अकर, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, हमेशा आगे ही जाएगा वो. आई एम टॉकिंग समथिंग ऑर्थोडॉक्स. किसी को कोई बीमारी है, कुछ है, लो प्रेशर हो गया, दैट्स एन अनदर थिंग कि ब्लड रुक रहा है, पंप पूरी तरह नहीं हो पा रहा. लेट अस टॉक समथिंग ऑर्थोडॉक्स एंड हेल्दी स्टेट. बैक फ्लो ऑफ ब्लड डज नॉट अकर, और यहां होने के चांसेस है, इसलिए तो वेल्व्स होते हैं. नाउ दैट्स द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट कि वेल्व्स का जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है वो वेल्व्स के क्या बोलते हैं, वेन्स में वेल्व्स की वजह से रुकता है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेन विच इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ आर्टरी. मतलब इस टॉपिक को आज जो हम क्लास की शुरुआत में पढ़ रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है पढ़ने का? व्हाट इज द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट? सिर्फ रटना नहीं है, आपको ये रीजनिंग के साथ पता होना चाहिए. ओके, सो जबकि बैक फ्लो कैन अकर regulated by valves. Backflow can occur regulated by valves. नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं ऊपर कंटिन्यूशन में. कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी, जबकि इस तरफ कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये बात सही है. ओके, स्टेटमेंट कुड बी कंसिडर्ड, बट देन
The googly to the statement is pulmonary artery. कौन सा आर्टरी? Carry deoxygenated blood. ब्लू कलर से लिखा है, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा. जबकि पल्मनरी वेन कैरी oxygenated blood from lungs to heart, from lungs to, from heart to lungs. उसको आप मेंशन कर लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा लेकिन उसको साथ में मेंशन करेगा कि एक्सेप्शनली इस तरह के नेचर को आउटबीट करके थोड़ा सा डिफरेंशियल अरेंजमेंट शो करते हुए, बट स्टिल पॉइंट टू बी नोटेड, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ आर्टरी एंड वेन इज बीइंग मेंटेन्ड. हार्ट से किसी ऑर्गन की तरफ जब भी कोई ब्लड लेके जाए, ऐसे ब्लड वेसल को आर्टरी कहेंगे. वो ब्लड भले ही एक्सेप्शनली डीऑक्सीजनेटेड निकला, क्योंकि आर्टरी में तो होना चाहिए था, बट द डेफिनेशन, इसलिए मैंने यहां लाइनिंग मार दी है, यहां पर कर दिया है पूरा, आप देख सकते हैं, टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स. तो दैट्स द नेचर ऑफ, क्योंकि डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं तो एक एक्सेप्शनल अरेंजमेंट होगा ही, तब जाके तो वो हासिल होगा डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट, वेयर ब्लड मूव्स थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग सिंगल सर्कुलेशन. तो आखिरी 2 पॉइंट्स. आर्टरीज आर डीप सीटेड. बॉडी में आर्टरीज जो होते हैं डीप सीटेड होते हैं, जबकि वेन्स आर सुपरफिशियल. बॉडी के 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आर्टरी हल्का फुल्का सरफेस पे आता है, और वो सारे आर्टरीज ही पल्स चेक करने में इस्तेमाल होते हैं. क्या चेक करने में? तो आफ्टर व्हेन आई गो थ्रू कार्डियक साइकिल, सिस्टोल, डायस्टोल, ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड प्रेशर, है ना, ये टर्म्स, हार्ट साउंड, है ना, जैसे आपने मसल्स पढ़ा था उसमें देखा था ना, टिटनस, टेटनी, एट्रोफी, डिस्ट्रोफी, ठीक है ना, इस तरह से जो टर्म्स हैं, स्पाज्म, स्प्रेन, स्ट्रेन, तो वैसे ही हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी, जब एक कार्डियक आउटपुट होता है तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलाइड विद गोइंग विद हार्ट, सिंगल हार्ट बीट, दैट आर पल्स, प्रेशर एंड हार्ट साउंड. पल्स, प्रेशर एंड, देयर आर 2 हार्ट साउंड्स, बनते 4 है लेकिन 2 टेक्निकली सुनाई देते हैं. आ रही बात समझ में? वो अलग बात है कि मेडिकल साइंस में पहुंच गए और आपको पता चलेगा कि चारों ही हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है, बशर्ते सिखाने वाला भी आपको वैसा मिले और आप खुद सीखने वाले भी वैसे बनो. और जो स्टेटोस्कोप है वो 5,000 से 10,000 रुपए वाला हो, 250 रुपए वाला नहीं जो ऐसी बस लगा के घूमते सब. अरे कुछ आया समझ में? वो जो सब 250 रुपए वाले ऐसे लगा के घूमते हैं ना, और कुछ तो जल्दबाजी में यहाँ लगाते भी नहीं ऐसी. मतलब शुरू शुरू में ऐसा होता है. अरे आया समझ में? दिस जोक्स डजंट कम एज सच, सच्ची में ऐसे जोक बनते हैं. शुरू शुरू में आदत नहीं रहती, जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आता प्रोफेसर के सामने, यही ऐसा लगा हुआ है और वही, हाँ हाँ सर, हाँ सर. फिर सर बोल रहे लगा तो लो कान में जरा, और उसमें वो सुनाई नहीं देता प्रॉपर, जो मरमरिंग और सब वो साउंड, उसमें सिर्फ दिखावे का स्टेथोस्कोप होता है. एक्चुअल जो एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिनको समझ होती है, सीख जाते हैं, फिर वो एक अच्छे स्टेथोस्कोप खुद सिंगल हैंडेड, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ये मेरे स्टेथोस्कोप से, जिसका है वो खुद ही उसको यूज करे. अरे आया समझ में? दिस इज द प्रैक्टिकल फैक्ट. तो वो 4,000 से 10,000 का होता है एक्चुअल, जिसमें सब सुनाई देगा. मैं तो चाहता हूं कि सब पहुंच तो जाओ, फिर तो पता चलेगा तुम्हें कि एक्चुअल मेडिकल साइंस है क्या. फाइनली 13% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन आर्टरीज, यानी 5 लीटर जो ब्लड पूरे शरीर में एक सर्कुलेशन में, एक समय में, लिविंग कंडीशन में, एक व्यक्ति के जिंदा रहते हुए शरीर में जब घूमता है, ठीक है, तो वो पूरे ब्लड वॉल्यूम का 13% है.
मतलब करीब करीब 700 टू 800 ml ब्लड आया समझ में, 5 लीटर का कुछ इतना ही ब्लड मान के 700 ब्लड 700 ml, और करीब 72%, क्योंकि बाकी तो सब जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्गन्स के बीच, उस ब्लड को काउंट नहीं कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज एक सर्कुलेशन में जो 72 और आप ये 13 दैट इज 85%, बाकी 15% ब्लड का 5% हार्ट में रहता है, दूसरे सारे ऑर्गन्स में सप्लाई में रहता है, कैपिलरी बेड में ब्लड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट रहता है, लेकिन पूरा एक मूविंग ब्लड जो है, क्योंकि यहाँ आते 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 स्लो हो जाता है तो इसको नहीं गिनते सर्कुलेशन में, जो बाकी मोबाइल ब्लड है जा रहा है आ रहा है ना, दैट इज 85%, और उस 85% में 13% आर्टरीज में रहेगा, लिविंग कंडीशन इन, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डेथ होने के बाद आर्टरीज पूरे खाली हो जाते हैं, द होल ब्लड ड्रेन आउट इनटू द वेन्स, और क्लॉट होके काला पड़ जाता है, इसलिए तो शरीर धीरे 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 2-3 घंटे बाद डेथ के बाद धीरे धीरे क्या होता है, डिपेंड करता है कि बॉडी कैसा पड़ा है, ऐसे पड़ा है तो ये सरफेस पे पूरा ब्लड आ जाएगा ड्रेन डाउन, क्यों, क्योंकि प्रेशर में ब्लड पूरा खाली हो जाता है, और कहां जाके रुकता है, बैकफ्लो होते 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 वेल्व्स की वजह से वेन्स में जाके रुक जाता है, तो पूरा आर्टरी खाली हो जाता है एक तरह से, तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ मेंशन की है, 13% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इन आर्टरीज इन लिविंग कंडीशन, और यहाँ 72% ऑफ ब्लड वॉल्यूम in living condition. So that was all about arteries and veins. Fine thin blood vessels made up of single layer of endothelium. Fine thin blood vessels made up of single layer of endothelium present in capillary beds in organ layers. है ना, कंस्ट्रक्ट क्या वर्क करते हैं वो, कंस्ट्रक्ट साइट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड एंड बाकी टिश्यू फ्लूइड से फिर सारे रिस्पॉन्डिंग सेल्स आसपास जो भी एक्सचेंज करे, लेकिन ब्लड तो सीधा सीधा लाके, मैंने यही स्टार्टअप दिया था चैप्टर के शुरू में कि ब्लड हैज अ नेचर टू ब्रिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्लूइड, और वो आते से ही नियर बाय सेल्स के बीच का जो स्पेस है वहां पर पोर कर देता है, फिर वहां से सेल, और सेल फिर अपना मटेरियल पोर कर देता है, फिर उसको रिकलेक्ट थोड़ा बहुत ब्लड जितना कर सके, 100% नहीं कर सकता है, सिर्फ 80%, क्योंकि certain substances are then recollected by lymph as a secondary fluid. That's another chapter of discussion. So that how we recognize capillaries, construct site of exchange between blood and tissue fluid. लेकिन खुद ये कैपिलरीज, अब मैं डायरेक्टली डायग्राम ना बना के, दो टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब उसके लिए क्या अल्टीमेटली याद रखना है,
टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। हालांकि चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाते हुए आपने दो तरह की कैपिलरी एक्सपीरियंस पहले ही कर चुके हो, फेनेस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनेस्ट्रेटेड। तो बस एक जो क्वेश्चन, अब देखिए यही बस डिफरेंस है, एएमयू जब हुआ करता था पेपर या अभी भी जो जिप्मा पेपर, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट टू लास्ट 2014 के एम्स का वही क्वेश्चन था कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज बॉडी में किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो आंसर है किडनी एंड लिवर। तो लिवर में क्यों पाया जाता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आज भली मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में लिखवा दूंगा, लेकिन वो तो जिस दिन आप लिवर पढ़ोगे डाइजेस्ट सिस्टम वहां ही समझा पाएंगे। जैसे अब आपको अगर कोई किडनी बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, तभी तो अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन बनेगा। सबको डायग्राम याद आ रहा है? बस, तो दैट्स द कंसेप्ट। ओके, टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। वही नॉन फेनेस्ट्रेटेड, और दूसरा होगा फेनेस्ट्रेटेड। क्वेश्चन तो फेनेस्ट्रेटेड का ही मेन है, लेकिन बस यहां बताने के लिए हो गया। So this is the fenestrate, non-fenestrated due to presence of tight junction. Now this is the question making point. देखिए क्या होता है, अब आया समझ में, जब एपिथेलियम टिश्यू पढ़ाया होगा तो मैंने ये भी सब समझा दिया होगा, लेकिन जो उस दिन जो पढ़ते वो काम कहाँ आएगा समझने में, वो तो समय के साथ। तो दैट्स व्हाट आई नीड कि मतलब आप भी अपने अंदर इस टाइप का ब्लेंडिंग नेचर रखे कि कौन सा चीज कहाँ पढ़ रहे और कहाँ हमें वो सपोर्ट करेगा किस कंसेप्ट को समझने में। क्यों है यहाँ नॉन फेनेस्ट्रेटेड? क्योंकि ब्लड मूव करते हुए क्लोज्ड बीवीएस का जो कंसेप्ट है, वेयर ब्लड शुड नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दिस इज द रूल ऑफ क्लोज्ड बीवीएस। ये हासिल कैसे होगा? चलिए, अभी तक जो ब्लड वेसल्स देखा उसमें तो इतने थिक लेयर्स थे, 3 सक्सेसिव लेयर, तो ब्लड लीक आउट तो हो ही नहीं सकता अगर उसको कोई डैमेज ना पहुंचे। डैमेज से याद आया कि आज हमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, कोआगुलेशन। अरे सबको आया समझ में? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, बस हो गया ये। उसके बाद हम हीमोफीलिया तक आज पढ़ लेंगे, पूरा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा सारे कंसेप्ट जेनेटिक्स का क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा। लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है, टाइट जंक्शंस, अंडरस्टूड है। अब सिर्फ एक समझाने के लिए कि थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे दिखाना, मतलब क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, टाइल्स लाइक फिटिंग। कैसा फिटिंग है? हेंस कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। क्या कहते हैं? एंडोथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम। लेकिन जहां हम फेनेस्ट्रेटेड में आते हैं, द सिनेरियो चेंज। सेल्स जुड़े तो होंगे, but this time the cells are not only attached, but this time the attachment is by the help of
गैप जंक्शंस क्या है ये? तो रिजल्टेंट आप समझ गए होंगे कि ये जो बीच में स्पेस बन जाते हैं, दीज आर फेनेस्ट्रेशंस। और एक्सेप्शनली ऐसा कैपिलरी बॉडी के दो ऑर्गन सिस्टम में पाए जाते हैं, बट आई एम गोइंग टू मेंशन अबाउट द किडनी। किडनी में मतलब देखिए क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट, किडनी में वो पार्टिसिपेट करते हैं अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन बनाने में, पार्टिसिपेट करता है। और लिवर में देखिए क्या टर्म मैं लिख रहा हूं, बस ये है क्या अब एक दिन पता ही चल जाएगा आपको। साइनुसॉइड्स क्या बनाते हैं? नाउ दिस इज अ करेक्ट मैच। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, किडनी, लिवर, एक में अल्ट्रा फिल्टर कंस्ट्रक्ट होगा, दूसरे में साइनुसॉइड्स। अब साइनुसॉइड्स क्या है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, लिवर को उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, वो तो वहां का टॉपिक है, वहीं समझ में आएगा जब लिवर का डायग्राम वैसा बनेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स एंड इट्स टाइप्स, जिसमें व्हाट इज अ टिपिकल ब्लड वेसल एक्स हैविंग दिस स्टेटमेंट, व्हाट इट इज रिकॉग्नाइजेज। वो क्वेश्चन बनने के तरीके, पहले आपका लिटरेचर कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और तुरंत कार्डियक साइकिल पढ़ने के बाद 3 इवेंट्स पढ़ाए जाएंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड हार्ट साउंड। तो जब ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे उस समय हम बात फिर से करेंगे आर्टरीज की प्रॉपर्टी और वेन्स, उस समय आपको ये मुंह याद रहना चाहिए, ठीक है। बट नाउ फाइनली टू कंक्लूड द टॉपिक, डिफरेंट स्ट्रोक में यहीं के यहीं हम पढ़ लेंगे कैड, दैट इज कोरोनरी आर्ट्रियल डिजीजेस, कोरोनरी आर्ट्रियल डिजीजेस। Now what is the concept? हालांकि जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बॉडी में किसी भी आर्टरी में हो सकता है, बट कोरोनरी सर्कुलेशन स्पेशली कन्फाइंड टू द हार्ट वेसल्स इटसेल्फ, मैं वहां के कंसेप्ट में, क्योंकि ज्यादातर वहीं अटैक पड़ता है इसका, मेडिकली रिपोर्टेड कंडीशन। So that's all about the structure heart, but ये जो सिस्टमिक आर्क है, सिस्टमिक आर्क है ना, लेफ्ट सिस्टमिक सिंगल आर्क नीचे डॉर्सल एओर्टा बनाते उतरता है। खुद हार्ट अपनी डबल सर्कुलेशन को चैलेंज करते हैं, क्योंकि डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है कि हार्ट और ऑर्गन, हार्ट एंड
या ऑर्गन एंड हार्ट, सिस्टमिक। फिर वही हार्ट और स्पेशल ऑर्गन फॉर ऑक्सीजनेशन लंग्स, और लंग्स इज पल्मोनरी। लास्ट क्लास यही था ना कंसेप्ट। लेकिन देयर आर टू पिकुलियर कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन, पोर्टल एंड कोरोनरी। हार्ट खुद ही सप्लाई अपने आप को करता है, तो कोई दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। सप्लाई भी कौन कर रहा है? हार्ट। और उस रिसीव कौन कर रहा है? खुद हार्ट। बिकॉज हार्ट इटसेल्फ इज ऑल्सो अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके जो सेल्स है, लेयर्स है, उनको ब्लड सप्लाई कौन करेगा? दैट पिकुलियर सर्कुलेशन इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। एवरीवन क्लियर? नथिंग स्पेशल, बस। तो अब उसको दिखाने का क्या तरीका है, देखिए कि ये रहा एक अलग से ऐसा ब्रांच निकलता है, और वो जाकर ऐसे वॉल्स, हार्ट के वॉल्स पे पेनिट्रेट करता है। आ रहा है समझ में? दिस इज कोरोनरी सर्कुलेशन। नाउ तो ब्लड सप्लाई होगा, फिर यहां पर एक हिस्सा कट करेंगे। अभी अभी जो हिस्टोलॉजी हमने देखा, तो इमेजिन करें वही लेयर्स होंगे, फिर धीरे धीरे वो लेयर्स हटते जाएंगे, फाइन कैपिलरीज। तो चाहे वो कैपिलरी हो, अब जहां जहां मैं ब्लू कलर बता रहा हूं, है ना, दीज आर blockage, these are, and those blockage may be either due to मैं टेक्निकली एनसीईआरटी कवर करते हुए ही बात कर रहा हूं, फिर उसके भी स्पेसिफिकेशंस हैं। जो भी ब्लॉकेज हुआ है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, द ग्रासरूट प्रॉब्लम इज अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इज अ, and that category of cardiovascular disease is called any coronary arterial diseases, which are of two types। एनसीईआरटी में एक ही मेंशन्ड है। नाउ दोस टर्म्स आर आर्थीरो स्क्लेरोसिस, आर्थिरो, और दूसरा है, स्पेलिंग पे गौर करिएगा, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। वेयर द डिफरेंस लाइज? आर्थिरो स्क्लेरोसिस, आर्थीरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो व्हाई नॉट पीप ओवर हेयर? सपोज ये वो एरिया है, उसमें अंदर जाके झाके, तो the technique of determining and finding any such blockage in the heart, that technique is called एंजियोग्राफी। क्या कहते हैं? और उसका जो भी रिपोर्ट आता है, फिर वो बना रहता है डॉक्टर के पास अपना, है ना, प्रेस्क्रिप्शन चार्ट, उसमें समझाने के लिए कि कहाँ कहाँ है, समझाने के लिए ऐसे बना के लिख देते हैं। कहीं 10% है, कहीं 90% है, ब्लॉकेज कितना आ रहा है वो, वॉट एवर सो, है ना, अकॉर्डिंगली फिर ऑपरेट करेंगे। सबको आ रहा है समझ में? लेकिन अभी मुझे यहाँ तुम्हें सर्जरी थोड़ी सिखाना है, मुझे तो ये क्या है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट डिस्कशन, सच अ कंडीशन लीडिंग टू आइदर आर्थेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नाउ दैट्स द क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट। उसके लिए ब्लड वेजल्स की हिस्टोलॉजी पहले क्लियर होना था, वो मैंने आज पढ़ा दिया आपको, डिफरेंस बता दिया है। लेकिन अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो आर्टरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। किससे रिलेटेड? नॉट वेन। तुम अपने लेवल पे बात करो, मतलब तुम्हें जो डील करना है। और वेन्स में ही ऐसा प्रॉब्लम को हम कहते हैं वेरिकोस वेन। आ रहा हूं मैं उस पर बाद में, ठीक है? डिफरेंट स्ट्रोक चल रहा है। कैट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की पहली कैटेगरी, कैट, कोरोनरी आर्टेरियल डिजीजेस। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए
आया समझ में एवरीवन? सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोसिस. आर्थेरो फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें डिपोजिशन ऑफ क्या होता है, मेन डिफरेंस देखिए, डिपोजिशन ऑफ, मेन डिफरेंस के साथ बता दे रहा हूं, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो आप वैसा का वैसा रट लो. लेकिन कल अगर दोनों ऑप्शन मेंशन्ड हो और बारीकी से जो आ चुका है क्वेश्चन, है ना, तब एनसीईआरटी को जो है ना, गॉड नहीं माना था, तब के क्वेश्चंस बता रहा हूं, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है और तब आपको चूज करना है, तो वो उसके लिए मैं पहले बता रहा हूं. बाकी तो एनसीईआरटी में एक लिखा है आर्थेरोस्क्लेरोसिस, बस यही लिखा हुआ है और उसकी डेफिनेशन वही है, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स सब मिलकर डिपॉजिट हो जाना, है ना, प्लाक्स की तरह. तो मैं क्या शब्द वर्ड है ना, एक धब्बे की तरह. डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स इन ल्यूमन इन ऑफ आर्टरी. बॉडी की किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हार्ट आता है, खुद हार्ट ही. तो डिपोजिशन, आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज सिंपली व्हाट, डिपोजिशन. देखिए या इस डायग्राम को, ये तो मैंने ऐसा क्रॉस सेक्शन में बताया है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये व्यू आप ऐसा देख रहे हैं, है ना, ऐसे सामने, ये साइड व्यू है, आप तो इसको ऐसे पूरा इमेजिन करिए और अब आपको ऐसे सामने से दिखाया जाए, है ना, ये आया सबको समझ में? जो ल्यूमन ऑफ आर्टरी है, सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर, एंडोथीलियम, ट्यूनिका इंटरना, उसके बीच में जो जगह है वो धीरे धीरे दोनों तरफ से, है ना, प्लाक्स क्या जमा हो रहे हैं, प्लाक्स, प्लाक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यहां जमा होते 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 क्या कर देते हैं, ल्यूमन बीइंग नैरो, बीइंग नैरोड, लीडिंग टू, मतलब लंबा समय तक है ना, लीडिंग टू ब्लॉकेज, लीडिंग टू, रिजल्टेंट क्या होगा, ब्लड सप्लाई रेयर एंड फाइनली स्टॉप, डेवलपिंग एनॉक्सिया टू टिश्यू, एनॉक्सिया टू टिश्यू डेथ. क्या हो जाएगा, और उस ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई ना मिलना, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ना मिलना. देखिए कहां से ग्रास रूट प्रॉब्लम चालू हो, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है. तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंशिएशन आएगा भाई, है ना, यहां ब्लड आएगा तो इतने ताकत से निकल नहीं पाएगा, यहां प्रेशर भी पड़ेगा और स्लो हो जाएगा ब्लड सप्लाई. शुरू में क्या हो जाएगा, रेयर, है ना, ब्लड सप्लाई बिकम रेयर, मतलब वहां पर इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड, और एक समय बाद वो ल्यूमन पूरा ढक गया, प्लाक पूरा जमा होकर ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज, 90% मतलब होते 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 बस बारीक पतला सा 90% ही ब्लॉकेज है, 10% खुला है, कहीं कहीं तो 100% पूरा बंद हो गया है. और जिस दिन बंद हो गया उस एरिया में क्या होगा, एनॉक्सिया, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई विथ न्यूट्रिएंट एब्सेंट, एनॉक्सिया सिचुएशन, है ना, टू टिश्यू डेथ. इस्चेमिया कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मेडिकली, सच सिचुएशन इज कॉल्ड. और रिजल्टेंट आप इमेजिन करिए, इस एरिया में मैं अब क्या दिखाना चाह रहा हूं, ग्रीन कलर से, टिश्यू नेक्रोसिस. क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, डेथ मतलब वो. द फिनोमिना, इस्चेमिया इज ए मेडिकल टर्म, सिचुएशन बॉडी में कहीं भी ऐसा जनरेट हो कि ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाना, अलग अलग कारणों से,
रीजन कुड बी एनीथिंग, लेकिन यहाँ का इस्चेमिया हार्ट के अंदर जो कंडीशन है वो इस ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज खुद डेवलप होना अपने आप में कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, आर्टियल डिजीज है, वेस्कुलर डिजीज है, आर्थीरोस्क्लेरोसिस। क्या है आर्थीरो? सबको आ रहा है समझ में? तो अब आप, तो यहाँ के मसल्स कौन है? टिश्यू मसल्स, हार्ट मसल्स सड़ गए, दोबारा तो बन नहीं सकते, वंस डेथ डेथ। तो एफिशिएंसी भाई, अब आप इमेजिन करो ना, रिबाउंड इलास्टिसिटी खत्म, वो तो अब पेस मेकर से चाहे जिस इंटेंसिटी से, उस इंटेंसिटी को प्रोपोगेट करने के लिए वहां क्या नहीं है? कार्डियक मसल्स नहीं है। तो हार्ट में एक एरिथमिक बीट और कार्डियक साइकिल डिस्टर्ब होगा, एंड इट मे लीड टू इस्चेमिक हार्ट अटैक। विच टाइप ऑफ हार्ट अटैक? हार्ट अटैक, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, डिफरेंट कंडीशन। हार्ट अटैक खुद अलग अलग तरह के होते हैं, रिमोटॉइड हार्ट अटैक, इस्चेमिक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हार्ट अटैक। मतलब अब वो मेडिकल एप्लीकेशंस वाली बात है, फिर वही क्लिनिकल शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पीछे का थ्योरी क्या है? एवरीवन, व्हाट इज आवर एक्सटेंट ऑफ लर्निंग? क्लियर है सबको ये कंसेप्ट अच्छे से? एवरीवन, नाउ व्हाट इज देन आर्थीरोस्क्लेरोसिस? ये तो हो गया आर्थीरोस्क्लेरोसिस और ब्लॉकेज। एक्चुअली ब्लॉकेज ये लाता है ऊपर वाला, ये ब्लॉकेज नहीं लाता, ये ब्लड प्रेशर में चेंजेस लाता है। क्या लाता है? इट लीड्स टू हाइपो हाइपरटेंशन एंड इट लीड्स टू ब्लॉकेज, फर्दर उसके मेडिकल इंप्लीकेशन, जिस एरिया में हार्ट पे जो असर पड़े। सबको आ रहा है? बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। आज के बाद ये सब टॉपिक कोई रिवीजन नहीं। कुछ टॉपिक्स मैं हमेशा पढ़ाते हुए क्या कहता हूँ, समथिंग नीड्स रिविजन। ये तो एक बार वन शॉट टॉपिक है, अब इसके लिए भी फिर समय निकाल के पढ़ोगे तो इट्स अ ग्रेट सिन, ऐसा पाप जिसका पश्चाताप नहीं है। फिर ये याद रखो आप, फरवरी के मंथ में आप बैठ के पढ़ रहे हो व्हाट इज आर्टरी, व्हाट इज वेन, वो तो हो गया, आज एक बार सुन लिया, ये है, ऐसा है, उनके 3 लेयर्स है, सक्सेसिव ऐसे काम करते हैं। इसी डायग्राम में एक्चुअली शो कर सकते हैं, लेकिन चलिए। इफ इट इज सो कॉल्ड आर्टरी, अगेन आर्ट्रियल डिजीज है, लेकिन आर्टरी में जो मीडिया लेयर है उसमें क्या होता है? ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना। loses its elasticity due to again deposition of calcium salts and fibers, dense fibers। ये है डिफरेंस। तो हार्ड हो जाता है, इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, जबकि अभी अभी आपने देखा था आर्टरीज आर इलास्टिक, वेन्स आर इन इलास्टिक, नॉन लेसर इलास्टिक, कांट रेगुलेट। लेकिन इंक्रीजिंग एज, इट इज एन एजिंग इफेक्ट, और भी अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं, बट ऑल ओवर इट्स एजिंग इफेक्ट। बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में कैल्सिफिकेशन बढ़ता है, अलग अलग चीजों के एरियाज में बॉडीज में, और अपनी जो है एक ऑल ओवर फ्लेक्सिबिलिटी शरीर खोता जाता है धीरे धीरे पहले से। तो सेम डू ऑन द आर्टरीज, दे बिकम हार्डन। तो रिजल्टेंट आप अब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन लाने के लिए मास्ट सेल से हिस्टामिन बने, सेरोटोनिन, लेकिन उनका असर नहीं आएगा ना उस पर, ना कॉन्स्ट्रिक्ट होगा पूरी तरह, ना डायलेट हो पाएगा, उसके लिए इलास्टिसिटी चाहिए। दैट्स आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, calcium salts and fibers in the media layer, thereby losing the elasticity. So resultant blood pressure problems या एनामोलीज लिखना ज्यादा बेटर रहता है, अब वो चाहे हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए, जबकि इनसे आता है ब्लॉकेज, और दिस इज द डिफरेंस। तो ये आर्ट्रियल डिसऑर्डर है। अच्छा, खुद आर्टरी एक ऑर्गन है, इसी से ही एक, मतलब क्या बोलते हैं,
टर्म बस याद कराना है मेरे को। क्योंकि आर्टरी खुद एक ऑर्गन है, बॉडी की किसी जगह पे जाइए, आर्टरी खुद एक ऑर्गन है। ये जैसे ग्रेट वेजल्स, वेन्स और ये आर्टरीज खुद एक ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो उनको खुद को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, तभी तो उनके ये जो टिश्यू लेयर से ये मेंटेन रहेंगे। सो द ब्लड वेसल विच सप्लाई blood to blood vessels itself ऐसे ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं वेसोवेरोसम। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में पोर्टल वेन, वेसोवेरोसम ऐसा करके लिखा होगा, तो यू शुड एटलीस्ट एबल टू जज व्हाट इज नाउ दैट वेसोवेरोसम। वेसोवेरोसम आर, है ना, सबलेटेड आर्टरीज नेटवर्क। जैसे अभी अभी आपने देखा कोरोनरी आर्टरीज। वेसोवेरोसम क्या है? खुद जो बड़े बड़े ग्रेट वेसल्स, डॉर्सल एओर्टा पूरा नीचे उतरता है, उनसे भी ब्रांचेस, बड़े बड़े जो आर्टरीज एक एक ऑर्गन में एंटर करते हैं। ईच आर्टरी एंड वेन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम made up of 3 consecutive layers। और organ मतलब ही more than one tissues, dense connective tissue, muscular tissue, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, हो तो क्या चारों टिश्यूज, प्लस उनमें नर्वस टिश्यू का भी सप्लाई हो गई। सबको आ रहा है समझ में? तो बन गया ऑर्गन। खुद उनको अपने आप को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स, उनको हम वेसोवेरोसम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनली वेरिकोज वेन क्या होता है? वेन से रिलेटेड डिसऑर्डर वेरिकोज वेन। when the veins of lower limbs fail to suck the blood, मतलब वापस, है ना, पहुंचाना ऊपर की तरफ सकिंग एक्शन से। when the veins of especially lower limbs, कमर से नीचे पूरे लोअर लिम्स के वहां के वेन्स जो है बढ़ती उम्र के साथ या कम उम्र में भी, जो भी वॉट एवर, किसी में जल्दी आ सकता है, किसी में लेट, डिपेंड्स करता है उसकी लाइफस्टाइल। एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है। कौन सा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर वो एजिंग है तो ये लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि खान पान, भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, दिनचर्या क्या है, बहुत सारी बातें हैं। स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस इज रीजन ऑफ ओबेसिटी ऑल्सो। अगर रहते रहते ओबेज हो जाता है, मोटापा आ जाता है ना, चिंता चिता के समान। लेकिन ऐसा नहीं है कि पतले ही हो गए सोच सोच के, कुछ लोग मोटे भी हो जाते हैं। So it depends on that complex body physiology and the metabolism actually inside being anticipated by different levels of hormones. स्ट्रेस में रह के जो है अनवांटेड हार्मोन्स बनते हैं और उनके असर से फिर मेटाबॉलिज्म रिवर्स हो जाता है। तो कमिंग टू माय डिस्कशन, वेरिकोज वेन, व्हेन द वेन्स ऑफ लोअर लिम्स फेल टू सक द ब्लड ड्यू टू लूजन वेल्व्स खराब हो जाते हैं, वेल्व्स लूज हो जाते हैं। वेल्व्स का नेचर क्या है कि वो अंदर कैसे होने चाहिए? थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे वेल्व्स होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लैप की तरह ऐसे खुलने चाहिए। बैक फ्लो जैसे ही आएगा यूं रोक लेगा, और फिर सकिंग एक्शन, क्योंकि आसपास के मसल्स, वेन्स जो है, सक्शन ऑफ डायस्टॉल पुल जो है किसका? हार्ट का, उसके वजह से तो आता ही है। लेकिन कब तक खींचेगा हार्ट? बाकी एक्चुअली क्या, आसपास के मसल्स वगैरह टोन अप रहना चाहिए उनके मूवमेंट से। जैसे आप अक्सर 15 अगस्त के दिन क्या होता है, दो चार जो गिर जाते हैं, कोलैप्स। द रीजन इज बिल्कुल स्टैंड एट ईज, तो स्टैंड एट ईज ही, मतलब नो बॉडी मूवमेंट। तो फॉर अ व्हाइल व्हाट हैपेंस, सर्कुलेशन एक जगह जाके, है ना, चोक होना शुरू हो जाता है। तो देयर शुड बी सम मूवमेंट।
पैर के अंगूठे को हल्का हल्का हिलाते रहना चाहिए, कुछ ऐसा, या हल्का फुल्का बॉडी थोड़ा मूव कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मूवमेंट बना रहेगा और वो आसपास की स्क्वीजिंग इफेक्ट मसल्स की वजह से वेन्स टोन अप रहेंगे और उनके वेल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, और दैट्स द साइन ऑफ हेल्दीनेस। लेकिन आम जिंदगी में लोग ये जान भी ले तो कितने लोग इसको परफॉर्म ध्यान करते हैं, और नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट एवरीवन? तो यहां पर ब्लड जो है, वेल्व्स जो लूज, तो ये आप देख रहे हो डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना वो नहीं कर पाते क्योंकि लूज ऑपोजिट में खुल जाते हैं। तो ब्लड वहीं रुकता है, और रुक के जो है सुपरफिशियल वेन्स होते हैं, सूजन रहता है, फूला हुआ रहता है, सरफेस से अलग दिखते हैं कि वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो हमेशा झुनझुनी बना रहना, पैरों में दर्द और बीपी प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बट द कंडीशन, फिजिकल साइन, आंखों देखा लोअर लिम्स में वहां पर जो है नसें फूल जाना, लोग हिंदी में क्या कहते हैं कि नसें फूल गई है, एक्चुअली इट इज वेरिकोस वेन due to failure of the loosening of the valves, not able to maintain the unidirectional flow of the blood. In nature, among vertebrates in chordates of animal kingdom, a special bypass circulatory pathway have been designed to meet the physiological need of body. What is portal circulation? In nature, it is the property of vertebrates only. Among chordates, chordates दो तरह के होते हैं, यूकॉर्डेट्स एंड प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता है। जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं, साइक्लोस्टोम से लेकर मैमल्स तक, वर्टिब्रेट मेंबर, whether Agnatha or Ganatha, jawless and jawed, whatever, that's classification part. But among them in the animal kingdom, एक special bypass circulation pathway बनाया गया, design up किया गया है ना, have been designed to meet the physiological need of the body. And moreover, point to be noted, this circulation is the part of venous system, is the part of in a closed BVS. Made up of three components, तीन components इसमें होते हैं। What are those three components? Made up of three components. What are those components?
organ 1, portal vein, and organ 2. तो डबल सर्कुलेशन को एक्सेप्शनली डिसओबे करते हुए हार्ट और ऑर्गन के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए ऑफ सप्लाई एंड रिकलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्गन नंबर 2. ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ही क्या करता है, डिसओबे द डेफिनेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन. क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होंगे वो इस तरह से रहेंगे. डिसओबे द डबल सर्कुलेशन. रीजन, because blood from an organ, disobey क्या हुआ, blood from an organ must reach back to heart directly, but else, लेकिन ऐसा ना होकर, but else recollected and supply to, क्या हो रहा है इस पूरे सर्कुलेशन में, क्या डिसओबे हो रहा है. ऑर्गन नंबर 1 से ब्लड डायरेक्टली कहां पहुंचना चाहिए था, हार्ट की तरफ, ऐसा ना होकर else recollected and supply to an other physiological organ. Thus, among vertebrates, such portal system are of 3 types. सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये तो पोर्टल सिस्टम की डेफिनेशन था, सारा कंसेप्ट था कि कुछ सिग्निफिकेंस है उसका, फिजियोलॉजिकल नीड, उसको ही मीट आउट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है. और ये क्लोज बीवीएस के वेनस सिस्टम का हिस्सा है जिसमें 3 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, और जो पार्टिसिपेशन में एक खास ब्रिज लिंक वेन, पोर्टल वेन इसमें इन्वॉल्व है बिटवीन ऑर्गन 1 एंड 2, जबकि डबल सर्कुलेशन कहता है हार्ट एंड ऑर्गन, उनके बीच या तो वेन होना चाहिए या आर्टरी होना चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ एक तरफा है वेनस सिस्टम, वो भी वेन और बाईपास वेन है, पोर्टल वेन. और क्या डिसोबे किया, कैसे किया, ठीक है. तो अल्टीमेटली वर्टिब्रेट्स में वो जो 3 तरह के मौजूद हैं, दोज आर रिस्पेक्टिवली रीनल, पोर्टल सिस्टम, hepatic portal system and hypophyseal portal system. जिनमें से ये 2 और फिर ये 2, try to understand the concept, रीनल और हेपेटिक और हाइपोफाइसियल. किसी भी एक वर्टिब्रेट में कभी भी तीनों पोर्टल सिस्टम नहीं पाए जाएंगे. अमंग वर्टिब्रेट 3 पाए जाते हैं, लेकिन 3 में से किसी एक वर्टिब्रेट में कोई भी 2 होंगे, एंड विच इज द कॉमन वन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, हेपेटिक. ये प्रेजेंटेशन आ रहा है सबको समझ में, टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन कवर, साइक्लोस्टोम से लेकर रेप्टाइल्स तक और बर्ड्स एंड mammals.
competitive window, in human, as mammals, hepatic portal system as a major portal system involving two organs and the portal vein. This is the setup. And the second one is hypophyseal portal system between hypothalamus, है ना, हाइपोफाइसियल, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, और ये रहा एंटीरियर पिट्यूटरी, पूरा पिट्यूटरी नहीं, ये मेंशन करना जरूरी है। ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, so that was all about portal circulation. एक बुक दीजिएगा मुझे। थैंक यू। So till date in the chapter I have covered the first of all part beginning with an taxonomic touch to the discussion of significance of circulation, how it has begun and existed in animal kingdom, and it has been laid, foundation has been laid by development of fluids external internal whatever the source. Accordingly circulation animal kingdom में throughout from lower to higher किस format में हो सकता है, और उसमें से सबसे बेस्ट डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एज अ ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म एनालिडा से चालू होता है। और ना केवल वो देखा, फिर उसके सारे ब्रॉड एस्पेक्ट्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड के सिंगल डबल का कंसेप्ट। स्पेशली हमने दो क्या बोलते हैं सब फाइलम लेवल्स पे हमने रेफरेंस स्टडी किया, दैट इज एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्योंकि वो भी हमारे कोर्स का एक हिस्सा था, जिसमें इंसेक्ट्स में आपने देखा क्या होता है हीमोलिम्फ, कैसे वो मूव करता है, एंड सो कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड में से बेहतर है क्लोज्ड। कंपैरेटिव पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे। तो इस पूरे चैप्टर में टिल डेट मेन बातें आपने क्या पढ़ा था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के डिफरेंसेस, ओपन और क्लोज के डिफरेंसेस। आने वाले दिनों में जब लिम्फ भी पढ़ा दूंगा तो ब्लड और लिम्फ का कंपैरिजन देखेंगे। तो क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स तो ऐसे ही होंगे आपके कि हाउ बोथ बीइंग सर्कुलेटरी फ्लूइड, दोनों ही तो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, लेकिन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कैसा बना है। एक में तो आरबीसी होता ही नहीं है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है और एबंडेंट इन नंबर लिम्फोसाइट्स, लिम्फ की बात करें तो ये सारे एस्पेक्ट्स चैप्टर को अभी तक हमने जिस तरह से डील किया, वी हैव नॉट ओनली डीलिंग दिस चैप्टर सिस्टम ऑफ 11th क्लास, इंडीड वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चन पैटर्न, एंड जहां जहां जो चीजें कवर हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास आपने स्पेशली देखा, एक्सपीरियंस किया कि ब्लड ग्रुप का क्या रोल है, आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है। तो मोर और लेस ये सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे। और टिल डेट मैंने पेज नंबर 281 जहां आरएच ग्रुपिंग करके लिखा हुआ है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फिर आप आइए पेज नंबर 282 पे देखिए, सर्कुलेटरी पाथवेज। एक्चुअली सही मायने में आज जाके ये टॉपिक, अभी मैं एक प्रेजेंटेशन और एक बनाऊंगा, ये वाला पैराग्राफ पढ़िए,
यू विल गेट द कंसेप्ट कि पूरा क्या पढ़ाया गया है। और फिर डिसकंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 286 पे डबल सर्कुलेशन का पैराग्राफ। तो एनसीईआरटी ने अपने नेचर के अकॉर्डिंगली चीजों को डिस्क्रीट करके चैप्टर्स के अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्कस कर रखा है, बट हमें एक सीक्वेंशियल उसको उसमें लाना था, है ना। तो इसलिए मैं बस मेंशन कर रहा हूं, नाउ इट्स योर रोल कि गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ दैट डबल सर्कुलेशन। इस वाले पैराग्राफ को आप पढ़ें। ईलियम पार्ट। ऑन 1 एंड 2 और उसके बीच जो पोर्टल वेन इन्वॉल्व है। अब यहां का क्या कंसेप्ट है कि इफ यू गो इनटू द इनर सरफेस, इंटेस्टाइन के इनर सरफेस एक एरिया में ऐसे कट करता हूं, तो अंदर ही अंदर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, so this is the innermost surface of the intestine, small intestine, है ना, where you could experience the presence of those finger like projections called villi। जैसे घरों में डोरमेट होता है, डोरमेट पे आप पैर रखते हैं, उसमें जैसे बिल्कुल बारीक से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत ही नजदीक से विद हाई डेंसिटी से मौजूद होते हैं, यस और नो। ठीक कुछ उस तरह का सरफेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अराउंड 700 टाइम्स मोर। तो इस डायग्राम का यहाँ बस ये सिग्निफिकेंस है कि एक्चुअली ये पोर्टल सिस्टम कैसे काम करता है। इतने दिन तक तो ये तो एक क्वेश्चन ओरिएंटेड जीके बेस्ड है, फैक्ट बेसिस है, व्हिच इज द गिवन कॉम्बिनेशन करेक्ट इनकरेक्ट देख के आपको टिक करेंगे। लेकिन व्हेन वी कम टू द सम कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टल सिस्टम, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखवाया है, हालांकि ये तो चैप्टर डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाते हुए सब बताया जाता है, बट यही थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ, जिससे कल आप घर पे बैठ के जब रिवाइज कर रहे हो तो at least you are in a position to attempt the question। तो whatever so इस तरह से रहता है पूरा सरफेस।
Now, this area is characterized by a unique type of trio supply. What is the trio supply? Special lymph capillaries. Special, each villi या vilus बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, is supplied by special finger-like branching of lymph capillaries called lacteal. क्या कहते हैं? तो खुद ये जो विलाय है, इन पर जो लाइनिंग है वो सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर, सिंपल कॉलमनार लाइनिंग होती है। तो वहां से जब वो एंट्रोसाइट सेल्स, एक एक एब्जॉर्प्टिव सेल्स चीजों को एब्जॉर्व करेंगे, थिंग्स विच विल बी एब्जॉर्ब्ड एज अ न्यूट्रिएंट इन दी काइल, यहां पर जो खाना होता है डाइजेस्टेड एल्कलाइन, दैट इज काइल, काइल में मौजूद वॉट एवर जो वो एब्जॉर्व होगा, इट विल टेक टू रूट्स, एक ब्लड वेसल में जाएगा और कुछ चीजें लिम्फ में जाएगा। जो ब्लड वेसल में जाएगा वो किस ब्लड वेसल में जाएगा? आर्टरी की वेन, आंसर होगा वेन। और वो सारे वेन कैपिलरीज टर्मिनेट होंगे, है ना, ब्रांचिंग आपस में टर्मिनेट होके जब बाहर निकलेंगे, दे विल मेक हेपेटिक पोर्टल टू मूव टू दी physiologically secondary organ before moving to the heart and the rest of the circulation. ये है वो फिजियोलॉजिकल नीड। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी एब्जॉर्ब हो रहा है न्यूट्रिएंट, कितना शरीर को सप्लाई करना है और सरप्लस में किसको वापस रख लेना है। कमिंग बैक टू द कंसेप्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एवरीवन आ रहा है समझ में? क्योंकि कोई भी चीज एक्सेस में है कि बॉडी के नीड में है, ये तो बॉडी का स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म तय करता है। तो जब घूम फिर के लिवर के पास ही आना है सबको, आया समझ में? तो व्हाई नॉट बाईपास कर दे, क्यों इतना घुमा के फिर लिवर को आके वापस लौटाए? इससे अच्छा है यहां रख के यहां से फिर सप्लाई किया जाए और सरप्लस को यहीं के यहीं रोक लिया जाए। दैट्स द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बाईपास सर्कुलेशन। काम को आसान बना दिया। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली चला जाता पूरे शरीर में घूम घाम के आके फिर यहां कौन लाता? इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स यहां, विटामिन जितना है स्टोर हो जाए, क्योंकि लिवर इज अ स्टोरेज ऑर्गन ऑफ व्हाट? विटामिन, फैट, वेरियस थिंग्स। लेकिन ये जो डिस्कशन, कंटेंट ऑफ डिस्कशन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें हैं। मैं तो आपको एक्चुअली, मुझे क्या पढ़ाना है अभी? सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलेशन, अ यूनिक बाईपास सर्कुलेशन कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। सबको ये आ रहा है समझ में अच्छे से? बिल्कुल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये लैक्टियल्स हैं एंड रादर तो डायग्राम से तो पढ़ लिया, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन तो बेसिकली कैसे बनेगा? कॉम्पिटिटिव विंडो, अलग अलग चैप्टर्स। अब आपको मैंने अभी तक स्केलेटन सिस्टम, बोन्स आपने वैसे पढ़ा नहीं तो हेवर्सियन कैनाल, हेवर्सियन, उसमें भी क्या होते हैं? व्हाट इज कॉमन? हेवर्सियन कैनाल, विलाय, पोर्टल ट्रायड, ठीक है, लिवर का ये प्रॉपर्टी है, पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। तो हेवर्सियन कैनाल इज द फिनोमेना ऑफ mammalian bone, making the mammalian bone to be vascularized, to be called हेवर्सियन सिस्टम। उसमें दो कैनाल्स होते हैं, उनमें से तो हेवर्सियन सिस्टम लिखा हो, विलाय, पोर्टल ट्रायड। आ रहा है सबको कंसेप्ट समझ में एवरीवन? और एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बॉडी में जहां इस तरह का अरेंजमेंट हो, चलिए अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, तो एनीवेज मैं यहाँ नन ऑफ द अबव ऑप्शन बना के रखता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो एप्टीट्यूड है, मतलब ऐसा उसकी कोई क्लास प्लानिंग या तैयारी नहीं होती है, वो तो मौके पे बस पूछ लिया है, तुरंत आपको अपने आप को रिकंसाइल और वहां पर तैयार करना है कि एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज दे आर वेल सप्लाइड विद व्हाट? लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, है ना? तो यहाँ ऑल द अबव मुझे ऑप्शन लिखना चाहिए था, या फिर स्पेसिफिक होके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल, है ना,
ductile supply, blood vascular supply of liver, of, तब आंसर, of intestine and bones, सभी वेस्कुलराइजेशन एक चैनलाइजेशन है, इट्स अ चैनलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज, अब वो ब्लड हो, लिम्फ हो एंड वॉट एवर, सबको आ रहा है समझ में, तो दैट इज, है ना, तो डाइजेस्ट सिस्टम खत्म है कि नहीं है, सबसे बेस्ट है ऐसे एक एक डायग्राम बना के चैप्टर खत्म। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आज घर पे आप जाके देखिएगा एक बार दोबारा, यू नो कि ये डायग्राम कहां से है, उस चैप्टर में उस पेज पे जाके आप जस्ट एक अलाइंड उस डायग्राम को देखें और बगल से पैराग्राफ पढ़े, आपको कुछ हद तक बहुत सी चीजें आएंगी समझ में। बट मुझे एक्चुअली मेन समझाना था पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक, हाइपोफाइसियल, और मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स क्या पढ़ाते हुए, एंडोक्राइन सिस्टम, वी नो हाउ दैट रिलेशन इज, कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी में वो सप्लाई मौजूद है, दैट्स अ माइनर, छोटा सा पाथवे, वहीं के वहीं वो पोर्टल वेन, इसलिए उसको माइनर पोर्टल सिस्टम कहते हैं, इसे मेजर। Types of vertebrate heart in animal kingdom, ठीक है, that is two chambered heart, 1A 1V, venous heart, only deoxygenated blood passes once, participate in single circulation, example cyclostomes and PCs, इनमें ही पाया जाता है, ठीक है। Two chambered, three chambered heart, two A plus 1V, atriovenous heart, both type blood passes with mixing, है ना, both type blood passes with mixing once in circulation,
participate in incomplete double circulation. Example, amphibians. Example, amphibians. Incomplete three-chambered heart. अब आप पार्टीशन देखिए, जो इंटरसेप्टल पार्टीशन है यहां पर, ये यहां तक ही और ये यहां तक आके भी पूरा फ्यूज नहीं होता, इनकम्प्लीटली थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अगेन यही सारे पॉइंट्स हैं, नथिंग स्पेशल, बस डिफरेंस क्या है वो मैंने यहां बता दिया है। एंड इट इज फाउंड only in reptiles, only in, but now here is an exception. Crocodiles have got four chambered heart, alike mammals. Alike mammals. और यहां से जो है दो सिस्टमिक आर्क निकलते हैं ऐसे, ऐसे दो सिस्टमिक आर्क निकलते हैं, राइट एंड लेफ्ट बोथ, लेकिन अंदर ही अंदर दो अलग अलग होने के बाद भी अंदर ही अंदर वो एक ओपनिंग से जुड़े होते हैं। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड, ये याद रखना है, नाउ दैट्स द क्वेश्चन, फोरामेन ऑफ पेनिजी। फोरामेन ऑफ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आप क्या पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेलिस, फोरामेन पेनिजी, ऐसे ऑप्शंस बन गए क्वेश्चन, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली। तो थ्रू आउट अलग अलग सिस्टम्स में आप ऐसे बहुत सारे फोरामेन, जैसे स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया होता तो अभी तक आपको फोरामेन ऑब्ट्यूरेटर, फोरामेन मैग्नम, ये स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स हैं। फोरामेन लश्का, मोनरो, मैजिंडी, ये ब्रेन नर्वस सिस्टम में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, किसके और किसके बीच, कहाँ से कहाँ सीएसएफ फ्लो करता है। नाउ दीज हैव बीन दोस ट्रेडिशनल पैटर्न क्वेश्चंस इन लास्ट 10 इयर्स, जब से सीबीएसई पीएमटी, एआईपीएमटी के नाम से क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, है ना। नाम चेंज हो गया, लीवर थोड़ी इधर आ जाएगा, है ना, कि नीट हो गया तो अब जो है कुछ का कुछ क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस ही रहेंगे, फॉर्मेट चेंज हुआ, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, कंडक्ट कराने के तरीके चेंज हो गए, वो एक अलग बात है। बट क्वेश्चन का जो लेवल, पूछने का जो तरीका होगा, वो मोर और लेस एक जैसा ही रहेगा। लेकिन हमें ट्रेडिशनली क्या करना चाहिए फॉर बेटर एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड फॉलोइंग, आप ज्यादा पीछे मत जाइए, मैक्सिमम अटमोस्ट 10 साल के पेपर रेफर करिए, ज्यादा से ज्यादा 2011 से 17, इन पिछले 7 इयर्स का पेपर आप रेफर करें एंड एक्सपीरियंस द पैटर्न ऑफ लर्निंग। तो ये तो था इनका एक्सप्लेनेशन। नाउ एट लास्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट,
see the difference of the four chambered heart, particularly found in the two next forms, class aves and mammals. But where the difference lies, the difference lies in systemic arc. Birds में और mammals में, मैमल्स में लेफ्ट सिस्टमिक आर्क होगा, क्या होगा, सिंगल लेफ्ट सिस्टमिक आर्क, और बर्ड्स में सिंगल राइट सिस्टमिक आर्क। बाकी फोर चैम्बर्ड सब कुछ है, लेकिन सप्लाई का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आया समझ में, ये डिफरेंस है। बोथ हैव गॉट फोर चैम्बर्ड हार्ट, रेस्ट एवरीथिंग, बट द डोर्सल एओर्टा एक हमारे में लेफ्ट साइड सेंट्रली प्लेस्ड, लेफ्ट साइड टिल्टेड है और लेफ्ट साइड से ऐसा ब्लड सप्लाई होता है। इसलिए तो मैंने उस दिन बनाया था डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ठीक है। पढ़ तो लिया जैसे पढ़ना था, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द W, X, Y and Z, है ना। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ABCD, फिर वही कंटेंट काम आएगा। सबको आया समझ में, एवरीवन, सबको आया समझ में। मतलब दिस इज आर्बिट्री क्वेश्चन, ऐसे कि किसी भी टॉपिक में बनाया जा सकता है, बशर्ते पहले खुद के, देखिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, खुद के कंसेप्ट्स, थ्योरी, कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग रिच थ्योरी होगा उतने ही आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। सबको आ रहा है समझ में। सुपरफिशियली पढ़ना एक अलग बात होती है, वो तो चलो आप एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट आता है, थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन मेकिंग, तो जितना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, मतलब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपका रिच होगा, आप उतनी बेटर रीजनिंग कर पाओगे और क्वेश्चन पैटर्न्स उतने ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाओगे, और वो कॉन्फिडेंस अलग आता है। फिर उसके लिए किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट डे मैंने आपके सामने, तो ये तो था टाइप ऑफ हार्ट, उसके पैटर्न क्वेश्चंस कवर करता हुआ, और RH incompatibility, चारों सिचुएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस,
राइट? आया सबको समझ में? So this is the result of RH positive male and RH positive female. This is the result of RH negative male and RH negative female. उसके बाद दोनों ही आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना था, ये तो आपके सामने मैंने बना दिया। अब आप खुद बैठ के घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें कि आपके सामने ऐसा प्रेजेंटेशन है और यू आर हैव टू डिफाइन द रीजन बिहाइंड कि किस में आरएच इनकॉम्प्लिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एंड रिजल्टेंट किस सिचुएशन में पी क्यू आर एस, which of the given combination is going to give birth to a congenital disordered newborn HDNS. फिलहाल यहां तो RH नेगेटिव मेल, क्योंकि सही है फादर का ब्लड ग्रुप आया ना, हम तो उस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर? आर एन RH पॉजिटिव मदर। तो अगला हेडिंग दीजिए ब्लड कोआगुलेशन। यहां से मैं नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगा, एंड स्पेशली नेक्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट टिल टाइप्स ऑफ वाल्व्स, मतलब हार्ट के अंदर। फिर उसके बाद वाला उतना ही पढ़ा पाऊंगा। फिर उसके बाद के क्लास में कार्डियक साइकिल, ईसीजी। कार्डियक साइकिल एक रिलेशन है ना, कॉम्बो में चलेगा कौन सा टॉपिक किसके साथ क्या। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं यू आर नाउ इन द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम चैप्टर को लेके कहां किस स्टेट पे पहुंच चुके हैं, है ना, और इस दौरान कितने वर्सटाइल अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न से गुजरे, वेदर इट वाज द ब्लड ग्रुप एंड इनहेरिटेंस पैटर्न क्वेश्चन, चाहे वो टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन रहे हो या फिजियोलॉजिकली इस चैप्टर से डीलिंग वाली सारी जो भी बातें अभी तक, स्पेशली अब आज के क्लास में आपने एक्सपीरियंस किया वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट दैट इज ब्लड वेजल्स, उसके टाइप्स, हिस्टोलॉजी, रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्पेशली सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में भी दो तरह का, कोरोनरी एंड पोर्टल। पोर्टल का भी क्या सिग्निफिकेंस है। और पिछले दो क्लास पहले हम थे ब्लड हिस्टोलॉजी पे, और वो पढ़ते हुए एक्चुअली हमने और एक चैप्टर कवर किया दैट इज एनिमल टिश्यूज, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। किसी को कोई डाउट? कॉकरोच का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बीइंग इंसेक्टा, ओपन टाइप विद हीमोसील एंड हीमोलिम्फ कैरेक्टराइज्ड बाय साइनसेस, ब्लड इज डायरेक्टली मूविंग फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू मतलब इस तरफ मुंह है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर ऐसे करके मूव कर रहा है ना, बाय द पल्सटाइल एक्शन, क्योंकि एलरी मसल्स दबते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट, कैसा हार्ट? ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स हो गया ना तैयारी, क्या और करोगे इसको? पूरे 6 सिस्टम्स पढ़ने हैं, ऐसे सिस्टम्स पढ़ते पढ़ते पढ़ लेंगे सब। लेकिन फिर मजा तब है, तब आप एंजॉय करते हो असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, जब आप एक दिन शांत मन से बैठ के रिकॉल तो करो कि कैसे पढ़ा, किस तरह से लिंक करके पढ़ा। जिस दिन तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा देन यू डजंट हैव टू कम बैक टू एनीवन, वो तो फिर आप फिर परफॉर्मेंस वाली बातें आना शुरू हो जानी चाहिए फिर। एवरीवन क्लियर? थैंक यू and happy Dashera. Enjoy yourself tomorrow.